start the recording. So once again, a very, very good afternoon, everybody. So how is everyone today? You can use your chat box to communicate. So a very, very warm welcome to everyone. And thank you so much for coming up for this meeting. So we can have some bit of interaction, some guidance, some understanding of what we are going to have in this Python diploma course that is going to start from 20th February. So I am sure definitely you have some questions in your mind, right? आप सभी के मन में कुछ तो सवाल होंगे. So let us first I will explain you about this course and then you can ask some questions that you have in your mind. All right, everyone? Is that okay? Can I have an okay in the chat box, everybody? So before we start, may I know why you are interested in Python? What is the reason for looking forward towards this course? कुछ कुछ तो आइडिया होगा आपके दिमाग में कि क्यों आपको पाइथन करना है, ऐसा कुछ सोचा है आपने? Yes, improve the skills. Okay, thank you, Sudarshan. Yes, anything else? Then why Python? Why not some other programming language, I should say? कोई है स्पेसिफिक रीजन, सुदर्शन, मोहित, पूजा, क्यों आप पाइथन करना चाहते हो? कुछ ओके, ठीक है, we'll discuss that, right? So before I start, let me give a small introduction of myself. My name is Vaishali Reddy, and I was born and brought up in Chhattisgarh state, and I did all my education, my engineering from Chhattisgarh. And then after doing my engineering, I have been into the industry since around, I should say, almost more than 20 years. So I have been into teaching plus a bit of development also I did. I have done minor trainings till corporate training. So different areas of training I have conducted. I was working with CDAC also for almost 5 years. I have also worked with some international clients. I have conducted training for army officers also. So a broad spectrum of people I have covered. So why? Because teaching is my passion. So I really enjoy my profession, I should say. That is why that is I can say driving factor in my life. तो मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और सामने सब जो हैं उनको समझ में आ गया, देन इट इज़ लाइक ग्रेट फॉर मी. तो वो दिन मेरा, मैं बोलती हूँ आज बहुत अच्छा गया अगर जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आता है तो. सो दिस गिव्स मी इनर हैप्पीनेस. दैट इज़ द रीज़न आई एम associated with the training industry. So that was about me. Okay. Now let's understand something about Python. जैसे मैंने आपसे पूछा आप क्यों पाइथन करना चाहते हो, तो आप, आई एम श्योर आपको पता है आंसर, लेकिन शायद आप कुछ हेजिटेट कर रहे हो बताने के लिए. सो वन very important reason is, can I say Python is very popular? Do you all agree? अभी आप हर जगह पाइथन 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 सुनते ही हो ना. So one important reason why we want to learn Python is because of its popularity. Market में हर जगह हमको सुनने में आता है पाइथन के बारे में. So that is one important reason. And technically, I should say learning curve is easier. Okay, so definitely
learning Python is much more easy as compared to other programming languages. That is another important reason. Then the next reason is आई शुड टेक इट इन अनदर वे. आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक यूट्यूब का एग्जाम्पल लेती हूँ. सभी लोग यूट्यूब तो यूज़ करते हो आप लोग. यूट्यूब में तुमने देखा होगा, जैसे तुम एक दिन कुछ तो टाइप करते हो कि मुझे आज पाइथन ट्यूटोरियल देखना है, तो आपको बार बार वो पाइथन के रिलेटेड ही पॉपअप्स आना शुरू हो जाते हैं. ऑल ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट. कुछ भी समझो, मैंने आज कुछ रेसिपी ढूंढी किसी चीज़ की, तो अगले 2-4 दिनों तक मुझे उसके रिलेटेड ही पॉपअप्स आना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. सो दैट इज एक्चुअली मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट. अभी थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा. सो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? मशीन लर्निंग. टू अचीव मशीन लर्निंग द बेस इज पाइथन. अंडरस्टूड? सो दैट इज अनदर रीजन. मतलब अभी जो आप सुन रहे हो ना, पॉपुलर है, पॉपुलर है, पॉपुलर है, पॉपुलर क्यों है? क्योंकि आजकल के जितने भी एप्लीकेशंस है, सभी को चाहिए कि उसमें कुछ इंटेलिजेंस हो. कस्टमर को क्या चाहिए वो हम पहले से जज कर लें और उसके हिसाब से कस्टमर को वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है, वो हम पहले से उसको दे दे अगर, तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे से सेल होगा. So that is achieved by using machine learning. So there are various fields like machine learning, data science, and there will be some other fields like robotics, etc. Means ऐसे बहुत सारे areas हैं. Even in the fields of mathematics, statistics. So there are multiple areas in which Python is very very highly used. तो ये सब करना है आपको, तो उसके लिए पाइथन एक बेस चाहिए. प्लस वी आर यूजिंग इट फॉर वेब डेवलपमेंट एज वेल. मीन्स देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस व्हिच आर बीइंग डेवलप्ड यूजिंग पाइथन. मतलब को पाइथन नहीं कहेंगे, उसके आगे के जो और भी चीज़ें हैं पाइथन में यूज़ होती हैं, वो उनको लेकर हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं. सो पाइथन इज यूज्ड इन मल्टीपल एरियाज. मतलब आप जिस दिमाग में सोचो कि मुझे क्या करना है आगे, तो मशीन लर्निंग में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह में, रिसर्च वर्क में जाना है. सो देर आर मल्टीपल एरियाज. उन सब के लिए, फॉर ऑल दीज थिंग्स, पाइथन इज द बेस, और वी कैन से अ प्री रिक्विजिट. तो अगर आपको पाइथन आता है तो आप इस लाइन को सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो. मे बी यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट आर लैंग्वेज ऑल्सो. अगर शायद अगर आप इससे जुड़े हुए हो तो आपने आर भी सुना होगा, लेकिन आर से पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और बहुत ज़्यादा यूज भी होता है. सो लर्निंग पाइथन विल ऑलवेज बी अ प्लस एज कम्पेयर टू लर्निंग आर लैंग्वेज. आर लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ ही जगहों पे यूज होता है, पर पाइथन सीखा ना तो मल्टीपल एरियाज में आप उसको कवर अप कर सकते हो. आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. So since many areas Python is being used, इसलिए इंडस्ट्री में उसका रिक्वायरमेंट भी वैसा ही बढ़ते चला जा रहा है. सो इवेंचुअली देर विल बी अ टाइम दैट many एप्लीकेशंस जो ऑलरेडी दूसरे टेक्नोलॉजी में बन चुके हैं, वो भी धीरे धीरे पाइथन में माइग्रेट होंगे. ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है. और नहीं भी होंगे माइग्रेट पूरी तरीके से, तो फिर भी कुछ कुछ पार्ट जो है उसका वो पाइथन में डेवलप होगा. और ये आप जब पाइथन सीखना शुरू करोगे तब उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ आपको समझ में आएगा. इवन दो इट इज इजी, आई सेड पाइथन लर्निंग कर्व इज इजी. मतलब पाइथन को सीखना आसान है, लेकिन पाइथन इतना पावरफुल है, उसमें इतनी सारी चीजें आप कर सकते हो, तो उसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. राइट? So that is one reason why you should learn Python. Okay, so it is definitely going to gain even more popularity. Already वो popular है, लेकिन और बढ़ते ही चले जाने वाला है उसका popularity. तो आप अगर आज पाइथन सीखने लग जाते हो, आज आप पाइथन में इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हो, तो 3-4 साल बाद आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट बन जाओगे. तो आपका जो ऑलरेडी स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी रहती है, और एक्सपीरियंस जैसे जैसे गेन करते जाओगे, सैलरी स्लैब उतनी ही स्पीड से आपका बढ़ता चला जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. सो व्हाई पाइथन का मैंने आपको आंसर दिया. ठीक है, क्यों पाइथन सीखना चाहिए. सो इट इज डेफिनेटली अ वेरी
bright future it has. So that will always act as a plus to you. So this question, everyone is okay? Now what we are going to learn in Python, let's understand that. So this entire course will be divided into some segments, we can say. So there will be something called as core Python. Then we will have web programming. Then we will have database. So in database, we are going to cover MySQL. Then we will have some frameworks, that is Flask, Django. Also, we are going to have data analysis. So these are the major components that we are going to learn that will be considered within Python segment. Now if you see core Python, वैसे भी आपको पोस्टर ग्रुप पे शेयर हुआ है, फिर भी मैं बता रही हूँ, core Python के अंदर programming basics will be there. Basics of programming will be there, right? Besides that, we will have what do you say, object oriented programming will be there. Then we will be covering the data structure that Python has. Data structures in Python, which is very, very powerful and very advanced. So these things we are going to cover. Okay. And also we will have many advanced concepts like exception handling, file handling, etc. Means you can see the detailed syllabus also. File handling, tkinter, and all those things will be covered under the core Python segment. Within web programming, we are going to have HTML, CSS, JavaScript, jQuery, then we have Bootstrap. So all these things will be covered under web programming. In database, again, we have the core database concepts. So SQL, PLSQL, everything will be covered in detail. Stored procedures, triggers, cursors, ये सारी चीजें होंगी. Now, many of the interviews, companies are asking Flask, Django, etc. So we are going to learn Flask and Django. ये दोनों जो हैं, ये वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने शुरू में बताया था. If you remember, I told you about the web development, right? So for web development, we are going to learn two different frameworks. एक Flask होगा और दूसरा होगा Django. ठीक है? So all these two are used for the web application development. And finally, we will have data analysis. Data analysis के अंदर होगा NumPy, Pandas. ये सब again, as I said, machine learning, data science इसमें use होता है. Then we have plotting. So these concepts are covered under data science segment. तो ये हो गया अपना core Python का syllabus, means total Python syllabus I should say, that we are going to cover, technical part. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? Everybody is okay? This is the core part that we are going to cover, technical part I should say. अब इसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्ट्स, 3 प्रोजेक्ट्स कराए जाएंगे आपको. पहला जो है वो कोर पाइथन में होगा. इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मिनी प्रोजेक्ट. ठीक है. दूसरा होगा आपका एक फ्लास्क में प्रोजेक्ट होगा. दैट विल बी अ वेब एप्लीकेशन. For example, like something like online shopping application, and another application also we will have in Django that will also be a web application. So in total you are going to work on 3 different projects. अभी तुम सब कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज में प्रोजेक्ट भी बनाते हो, तो मेरे ख्याल से सबने ऐसा एक्सपीरियंस किया है ना कि उस समय इतना तो अपने को नॉलेज भी नहीं रहता है, तो हम इधर से उधर से पूछ के बहुत बार कॉपी करके हम प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं. सो टेक्निकल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अपने को इतना नॉलेज नहीं मिलता है. डू यू ऑल अग्री विद दैट?
इफ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन इट इज वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है एंड दैट इज नॉट योर फॉल्ट, राइट, बिकॉज उतना आपको आइडिया नहीं है तो आप कैसे करोगे, राइट? सो अब क्या होता है, वैसे ही आप डायरेक्टली जब कंपनी में जाते हो, इंटरव्यू में जाते हो, और वो फिर प्रोजेक्ट के बारे में पूछना शुरू करते हैं। अब क्योंकि आपने खुद नहीं बनाया, आपको नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो दैट जो वो वीकनेस है या जो वो कमी है, वो यहाँ पे हम दूर करेंगे। सो व्हेन वी स्टार्ट ऑफ विद बेसिक्स, ठीक है, तो हम जब पढ़ाएंगे तो ये अज्यूम करेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है, विल जस्ट अज्यूम कि आपको प्रोग्रामिंग आता ही नहीं है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। धीरे 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 सीढ़ी जैसे हम चढ़ते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, तो वैसा हम एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे। धीरे 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 वो बड़ा होते चला जाएगा, सो दैट यू स्टार्ट लर्निंग द कॉन्सेप्ट। सारे फंडामेंटल्स आप अच्छी तरह से समझना शुरू करोगे जब तक। और जैसे मैंने कहा कि हमारा ये मीन्स विल ट्राई दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। उसके पीछे क्यों, मतलब कोई भी कोड लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, राइट? यू शुड अंडरस्टैंड दैट पॉइंट क्लियरली। तो आप अच्छी तरह से उसको समझ लो, एब्जॉर्ब करो। डे टू डे आप एक एक स्टेप करते करते करते, एज आई सेड, यू आर गोइंग टू डेवलप द प्रोजेक्ट। तो तुमको भी पता है कि तुम कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हो और तुम खुद उसका प्रोजेक्ट बनाते हो अगर, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बढ़ जाएगा। डू यू अग्री विद दैट? राइट। सो आप पहले उसको सीखो, और ऑब्वियसली वी आर विथ यू, राइट? कहीं पे भी आप स्टक हो जाओगे तो हम आपको हेल्प करेंगे। तो आप करते करते आप खुद अगर कोडिंग लिख रहे हो, खुद बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम खुद से सॉल्व कर रहे हो, पहले भी शायद आपने कुछ इंटरव्यूज दिए होंगे, ये सीखने के बाद फिर से वो इंटरव्यू क्वेश्चंस आप ट्राई करो। और अगर आपको खुद से वो बन रहा है तो ऑब्वियसली आपने कुछ सीखा है ना, मीन्स देयर इज अ प्लस नाउ, यू आर ग्रोइंग अप अ लिटिल बिट, करेक्ट? तो ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप आपका ग्रोथ हो जाएगा। सो यू आर गोइंग टू डेवलप दी वेब एप्लीकेशन लाइक फ्लास्क एंड जैंगो। ये सारे एप्लीकेशंस हम लोग सर्वर पर डिप्लॉय भी करेंगे, मीन्स दोज एप्लीकेशंस विल बी मेड लाइव। तो वो जो लाइव एप्लीकेशन रहेगा वो अगर आप रेज्यूमे में डालते हो, कंपनी में इंटरव्यू में जाते हो और बोलते हो कि यहाँ पे आप क्लिक कीजिए सर, आपको मेरा वेबसाइट दिखाई देगा, सो डोंट यू थिंक दैट विल क्रिएट अ वेरी डिफरेंट इम्पैक्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपने एक वेबसाइट खुद बनाया, उसको सर्वर पर अपलोड भी कर दिया, नाउ इट इज लाइव एंड पीपल कैन क्लिक ऑन इट एंड दे कैन सी दैट वेबसाइट। यस मोहित, पूजा, समझ में आ रहा है? सो डोंट यू थिंक दैट विल बी एन अमेजिंग मोमेंट, राइट? यस अश्विनी, करेक्ट। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा, राइट? एवरी डे यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, यू आर गोइंग टू gain so much of confidence when you start learning these concepts. So this is what we are going to cover in the overall segment. अब जब हम आपको सिखाते हैं, जब आप सुनते हो, लेक्चर को सुनते हो और जो प्रैक्टिस करते हो, तो तभी आपको लग सकता है कि हाँ मुझे समझ में आया। बट व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग द कोड, तभी हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आए। सो whenever we are having the theory sessions, एक तो होगा जो हम पढ़ाएंगे क्लास में, राइट? सो देयर विल बी अ थियरी सेशन जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट, कोडिंग भी करके दिखाएंगे, विल शेयर द कोड, विल शेयर द पीपीटी एंड ऑल दोस थिंग्स। पर जब आप उसको प्रैक्टिस करने जाओगे तब आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आएगा, ओके? सो इन ऑर्डर टू सपोर्ट दैट वी विल अरेंज द लैब सेशंस फॉर यू। सो देयर विल बी लैब मेंटर्स दैट विल बी देयर फॉर योर सपोर्ट। तो कुछ भी लैब में कुछ प्रॉब्लम आएगा, सो दैट विल बी सॉर्टेड आउट देयर। समझ रहे हो? सो पॉइंट हियर इज, कुछ भी डाउट आपके पास है तो वो उसको रिजॉल्व होना चाहिए। कभी कभार होता है ना क्लास में आप नहीं पूछ पा रहे हो, तो चलो लैब में जाके उसको क्लियर कर लो। सो अल्टीमेट गोल इज जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ये एक चीज हो गई। बीच बीच में हम हर टॉपिक के बाद, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आफ्टर एवरी टॉपिक, यू विल बी गेटिंग असाइनमेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स है, जैसे मैंने एडिशन सिखाया, 2 + 2 4,
3 + 5 8, ऐसे मैंने सिखा दिया। अब मैं आपसे बोलूं हाँ 9 + 3 करके दिखाओ, सो दैट इज असाइनमेंट, राइट? अगर आप कर पाए तो इसका मतलब आपको एडिशन समझ में आ गया, करेक्ट? So whatever concepts we are learning in the class, whatever programs we are solving in the class, उसके अलावा हम कुछ additional questions आपको देंगे, और वो जब आप खुद solve करेंगे, खुद से आप solve कर पाओगे, तब actually learning होने वाला है, right? And as I said, हो सकता है assignment में भी आपको कुछ doubt आएगा, कुछ आपको problems नहीं आएंगे, so you can ask them from your lab trainers or you can ask me, जो भी आपके session, if I'm taking your session, you can ask me directly. Is that clear, everyone? अब ये भी हो गया, असाइनमेंट भी हो गया। अब देखो, असाइनमेंट का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो देयर इज नो टाइम लिमिट। असाइनमेंट आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में सबमिट कर सकते हो। पर जब इंटरव्यू में आप जाते हो, कंपनीज में आप जाते हो, तो वहां 1, 2, 3 दिन का टाइम नहीं रहता है, 1 घंटे के अंदर वो सॉल्व करना होता है, करेक्ट? सो ऑन अ रेगुलर बेसिस वी आर गोइंग टू कंडक्ट योर टेस्ट एज वेल। तो उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, टाइम लाइन दिया जाएगा, और उस टाइम में लाइव आपको वो टेस्ट सॉल्व करना होगा। So by doing this, you get a practice of solving the questions in a given period of time. समझ में आई बात? So एक हो गया कि हमने आपको एकदम अच्छे तरह से डीपली कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, उसको आप प्रैक्टिस करते हो लैब में, उसके रिलेटेड असाइनमेंट सॉल्व करते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, सो वी ऑल आर देयर एज अ टीम टू हेल्प यू आउट विद दोस। और ये सब होने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा रेगुलरली टू अंडरस्टैंड दैट यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। टेस्ट में आपका स्कोर आएगा ना, तो स्कोर से हमको भी पता चलेगा कि तुमको एक्चुअली समझ में आ रहा है कि नहीं। सो ऑन अ रेगुलर बेसिस वी आर गोइंग टू कंडक्ट योर टेस्ट टू जस्ट अंडरस्टैंड कि आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है? आई होप एवरीबडी इज ओके टिल दिस पॉइंट। इसके अलावा ये तो हो गया प्रैक्टिकल टेस्ट की बात। देन फॉर ऑल दीज टॉपिक्स देर विल बी समथिंग कॉल्ड एज अ मॉक इंटरव्यू। हाँ, तो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। एक तो हो गया टेस्ट, देन देर विल बी समथिंग कॉल्ड एज मॉक इंटरव्यूज। सो ऑन अ रेगुलर बेसिस योर मॉक इंटरव्यू मतलब समझते हो? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स मॉक इंटरव्यू? मतलब हम आपको इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको आंसर देना है। जैसे इंटरव्यू में, एक्चुअली इंटरव्यू में कैसा होता है ना, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं और आप आंसर देते हो, सो यू आर गोइंग टू डू दैट। एंड इफ योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क, देन द इंटरव्यूअर विल टेल यू कि ये आंसर ऐसा नहीं, ऐसा देना चाहिए। सो सपोज यू डोंट परफॉर्म वेल, देन यू विल बी गिवन अ सेकंड चांस टू परफॉर्म। और ये सब कुछ रिकॉर्ड होगा, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि आपने कैसा आंसर दिया, एंड देन नेक्स्ट टाइम यू कैन इम्प्रोवाइज इट। So basically again we are doing a practice of how the interviews will be done. ठीक है? And as I said, you are going to have the 3 projects, right? तो प्रोजेक्ट्स जब भी आपको असाइन होगा, डेली टास्क उसके लिए रहेगा, उसका प्रोजेक्ट गाइडेंस आपको मिलेगा। व्हेन यू आर डन विद द प्रोजेक्ट, देन यू हैव टू गिव द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। जो भी एप्लीकेशन आपने बनाया है वो आपको रन करके सारे टीम के साथ शेयर करना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में आपको प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन करना रहेगा, सो यू हैव टू explain the entire project, and then lot of questions will be asked to you and you have to answer those questions. तो अगर तुमने खुद बनाया है वो प्रोजेक्ट, तो तुम डेफिनेटली बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर पाते हो और अपने एप्लीकेशन को बहुत अच्छे तरह से प्रेजेंट भी करते हो। सो ऑल दीज थिंग्स, मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि ये सब करते 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 आप ओवरऑल पूरा टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझ जाने वाले हो, राइट? यू आर गोइंग टू गेन कॉन्फिडेंस एंड यू विल से यस नाउ आई नो दिस टेक्नोलॉजी। डू यू थिंक लाइक दैट? तुम खुद थोड़ा सा सोच के देखो ना, अगर ये सब प्रोसेस हम फॉलो करते हैं कि अच्छे से पूरा लेक्चर अटेंड करते हैं, सारे असाइनमेंट्स करते हैं, टेस्ट देते हैं, मॉक इंटरव्यूज देते हैं, प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, सो डू यू थिंक आपका एक ग्रेजुअली आपका ग्रोथ हो रहा है?
technically you are going to become sound. Do you feel that? Yes. What about Pooja, Mohit, Ashwini? Do you think like that? Yes. So anyways, you know that initial 30 hours are free. तो आप वैसे भी अटेंड कर सकते हो और आपको एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों का मिल भी जाने वाला है ना? वेदर ये मैडम जो बोल रही है वो एक्चुअली होता है कि नहीं, उसके लिए आपके पास फ्री सेशंस है अवेलेबल, डेमो सेशंस, राइट? So you can attend, join the session, and you can experience whether actually what this is going to happen or not. Correct? So this was all about the core Python part, right? Means Python में actually क्या होगा? Besides that, we will have some supporting or the add-on modules, etc. So about which Girija ma'am will explain you. So I will hand over the mic to Girija now. Yes, thank you, ma'am. Thank you very much for the beautiful walkthrough about the technical part. Thank you, It's Girija. all I'll right. stop presenting. Yeah, sure. Thank you, ma'am. Just hold on a minute. I'll share my screen with you all. Okay. Can you just confirm, everyone? Screen is visible? Screen visible है? Right. Perfect. Thank you. Thank you very much. Yes. Okay. So, understand one thing. टेक्निकल पार्ट मैम ने काफी अच्छे से आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है. What is the core Python content? What is advanced Python content? Everything ma'am has explained you. Now, this is the point where we all are having a dream in our eyes. And what is that dream? We all want to start our career. Correct? जनरली जॉब ये टर्म थोड़ा सा अलग लगता है कि हमें एक जॉब चाहिए. बेसिकली जॉब इज जस्ट अ माइलस्टोन. वी हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एंटायर करियर. हमें पूरे ड्यूरेशन के लिए ये तैयारी करनी है. किसी एक या 2 दिन की बात नहीं है. जॉब एक अचीवमेंट है, एक माइलस्टोन है. बट एक्चुअल में अगर हम थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाकर देखते हैं तो हमें डेली बेसिस पे परफॉर्म करना पड़ता है. आर यू अग्री विथ दिस? कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है. हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ता है. एक वो रेगुलर का प्रोसेस है. नाउ टू गेट द इंडस्ट्री रेडी along with the technical part, along with the knowledge, we must know certain skills. कुछ बातें जरूर हमें पता होनी चाहिए. कुछ एटिक्वेट्स, कुछ कॉर्पोरेट रूल्स we must understand, right? तो ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले, ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद काफी सारी बातें होती है. हमारा एक प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, हाउ शुड बी आवर रिज्यूमे, हमें कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए. इवन दो वी आर नॉट एग्री एट सर्टेन पॉइंट्स, हाउ टू शो आवर डिसएग्रीमेंट. तो ये सारे क्या है? ये स्किल्स है. और ये किसके अंदर आते हैं? कैन एनीवन गेस? कैन एनीवन गेस? ये सब कुछ किसके अंदर आ सकता है? क्या लगता है आपको? एग्जैक्टली, यस. तो ये आते हैं हमारे सॉफ्ट स्किल्स. काफी सारी चीजें हैं देखो इसमें. बॉडी लैंग्वेज, हाउ शुड बी आवर ड्रेसिंग, हाउ शुड राइट द प्रॉपर रेज्यूमे, ईमेल का राइटिंग कैसे होना चाहिए. छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे स्किल्स है जो हमें पता होनी ही चाहिए. तो ये सॉफ्ट स्किल्स आता है. फिर उसके बाद आता है एप्टीट्यूड का पार्ट. अभी जब हम कंपनीज के लिए जाते हैं एज अ फ्रेशर, तो फॉर फ्रेशर सबसे पहले एप्टीट्यूड राउंड ये होता है. उसके बाद टू चेक द कम्युनिकेशन, मे बी वो आपका कुछ टेस्ट लेके ग्रामर का छोटा थोड़ा बहुत पार्ट, या फिर वो आपका जीडी राउंड ले सकते हैं सब चेक करने के लिए कि उसका स्किल्स कैसे, स्पीकिंग स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे है. देन उसके बाद कोडिंग राउंड हो सकता है. देन टेक्निकल इंटरव्यू. कभी कभी ये सारे राउंड कंबाइन करके एक ही एप्टीट्यूड टेस्ट में रखा जाता है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी. हर कंपनी बाय कंपनी ये प्रोसेसेस जो है वो चेंज होते रहते हैं. बट ओवरऑल अगर आप समझ लो तो ये 4 राउंड आपको दिखेंगे ही दिखेंगे. कौन से? एक तो है एप्टीट्यूड का राउंड, दूसरा है कम्युनिकेशन का राउंड,
नेक्स्ट आता है कोडिंग राउंड, एंड नेक्स्ट आता है टेक्निकल इंटरव्यू, एंड फाइनली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट राउंड मैनेजरियल राउंड, या उसी को एचआर राउंड भी बोला जाता है। तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हमें इस पूरे प्रोसेस के लिए तैयार रहना है। तो उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स एंड एप्टीट्यूड प्रोफिशिएंसी इज इंटीग्रल। ऑलराइट, नाउ it might happen that sometimes, see, understand one thing, if you are a CSIT graduate, then आपने पूरा 4 साल में सारा ये प्रोग्रामिंग वगैरह सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से सीखी है। Sometime it might happen if you are from the different background, then it will be little bit difficult initially for you guys to understand what exactly is the operating system, what exactly is the software development life cycle. Now यहाँ पे आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं शॉर्ट में OS लिख रही हूँ, OS एंड SE, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग SE। तो ये जो टॉपिक्स है वो आपके कोर्स कंटेंट में इंक्लूड किए गए हैं, सो दैट यू विल लर्न कि बेसिक्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। आपने काफी टाइम्स ये वर्ड सुने होंगे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, राइट? तो हाउ एग्जैक्टली द फंक्शंस आर हैपनिंग, कैसे काम कर रहा है OS, तो ये हमें पता होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर को अगर हमें डेवलप करना है तो उसका एक साइकिल क्या होता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक का क्या स्टेप होता है, तो ये सब कुछ हमें पता होना जरूरी है। तो उसी के लिए OS एंड SE के सेशंस यहाँ पर रहने वाले हैं। सो दीज आर द add-on modules and we often call it as a power boosters. These are the power boosters. All right? Yes. Now, along with this, one more benefit for you in this same package is C and C++ recordings. Okay. Now, a question may arise over here. Why C and C++, ma'am? Is it mandatory to learn C and C++ to learn Python? Does this question comes in your mind? Definitely. ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा आपके माइंड में कि ये जरूरी है कैसे। See, to learn Python, learning C, C++ is not mandatory. But when you guys are from the CS and IT background, तो आपके एकेडमिक में ये C++ सब्जेक्ट होते हैं, आपने ये सीखा है, करेक्ट? ये होता ही है आपके सिलेबस में। नाउ जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में जाते हो तो पाइथन पे तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही, प्लस if you are from CS and IT background, then you will get some questions on C and C++ as well. So that is why we have added these modules again in your course. And इसके जो है आपको रिकॉर्डिंग्स मिलने वाले हैं। सो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स आप लोग अपना पाइथन सीखते सीखते पैरेलली ये बातें भी कवर कर सकते हो। ऑलराइट, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, यू आर फ्रॉम CSIT बैकग्राउंड, एंड आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी। सो दैट्स द होल एंड सोल पर्पस। बाकी अबाउट द रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, एड ऑन मॉड्यूल्स जो है, टेक्निकल मॉड्यूल्स, एड ऑन मॉड्यूल्स, ये सारे जो सेशंस है वो लाइव कंडक्ट होते हैं, प्लस एक विद इन ड्यूरेशन ऑफ 4 to 24 आवर्स इसका रिकॉर्डिंग भी आपको आपके गूगल कैलेंडर पे अवेलेबल कर दिया जाता है। जनरली ये रिकॉर्डिंग का जो एक्सेस है वो लाइफ टाइम के लिए रहता है। इफ इन केस गूगल चेंजेस द पॉलिसी, देन ओनली यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऑल द रिकॉर्डिंग्स जो भी हमने प्रीवियस बैचेस के लिए वगैरह लिए थे वो अभी भी एज इट इज है। तो ये रिकॉर्डिंग का एक्सेस आप लोगों को लाइफ टाइम रहने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, सो टिल दिस पॉइंट इज देयर एनी कंफ्यूजन, इज देयर एनी डाउट, इज देयर एनी कंफ्यूजन, डाउट कुछ है? नो, perfectly fine. All right, ठीक है। So shall we move for the next part? Shall we move? Okay.
नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जैसे जैसे आपका कोर्स कंटेंट आगे चलता जाएगा, देखो शुरुआत में आपका टेक्निकल मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है. ओके, टेक्निकल मॉड्यूल, जैसे जैसे ये टेक्निकल मॉड्यूल स्टार्ट होगा, जैसे जैसे ये कोर्स आगे जाएगा, एक अराउंड 15 दिन के बाद आपका एक एड ऑन मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा. एड ऑन मॉड्यूल्स, पावर बूस्टर्स, यू गाइस हैव द आइडिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया. ओके, एंड अगेन, और जैसे आपका यहाँ पे टेक्निकल सेक्शन में प्रोग्रामिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे मैम ने कहा कि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि प्रोग्राम करते करते कुछ एरर्स आते हैं, अचानक से समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या इश्यू आ रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो उसके लिए यहाँ पे लैब सेशंस भी है, जिसमें आप लैब मेंटर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो आपके क्वेरीज जो है. थ्रू स्क्रीन शेयरिंग भी आप कर सकते हो, कि समझ में आता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है. तो ये लैब सेशंस भी रहेगी. सो ओवरऑल इन अ पर्टिकुलर डे आपका जो टेक्निकल मॉड्यूल है वो अराउंड 1 से 1.25 घंटा चलेगा, राइट, 1 hour to 1 hour 15 minute. सेम विथ एड ऑन मॉड्यूल 1 से 1.25 घंटा चलेगा, एंड सेम विथ द लैब सेशन 1 से 1.25 घंटा. तो अगर हम इन सारे टाइम स्टैम्प्स को क्लब कर दें तो अप्रोक्सीमेटली एक दिन में कितने आवर्स का लर्निंग हो रहा है आपका? कैन यू प्लीज टेल मी, एक दिन में कितने आवर्स का लर्निंग हो रहा है? देखिए, कैलकुलेट, रफ कैलकुलेशंस कीजिए, वी डोंट वांट एनी accurate value. Do the rough calculations. Yeah, exactly. Around 4 hours का. So here I'll put 3 to 4 hours. In a day, ये टाइम जो है आपको डेडिकेट करना पड़ेगा. Now time flexibility over here is a very important part. Now why I'm saying so? Because understand one thing, ये टेक्निकल मॉड्यूल जो है आपका आफ्टरनून में रहेगा, करेक्ट? यस. देन उसके बाद एड ऑन मॉड्यूल भी आपका स्टार्ट होने वाला है. तो ऑब्वियसली जब टेक्निकल मॉड्यूल चल रहा है वो टाइम पे एड ऑन मॉड्यूल तो नहीं रखा जा सकता ना. तो एड ऑन मॉड्यूल में भी आपका मॉर्निंग में होगा या मे भी आपका इवनिंग में होगा, मतलब वो टाइम स्लॉट छोड़ती. प्लस लैब सेशन भी, या तो वो मॉर्निंग में हो सकता है या इवनिंग में हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. सो यू गाइस नीड टू हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी अबाउट द टाइम. ओके, इन अ डे आपको अराउंड 3 to 4 आवर्स कोर्स के लिए, लर्निंग के लिए डेडिकेट करनी है. इस बीच अभी आपको वही सवाल आता है कि लाइक मे बी आपका कॉलेज होगा, मे बी यू गाइस आर वर्किंग समवेयर, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. ऑनलाइन का तो वही ब्यूटी है ना, कि हम कहीं पर भी बैठकर अपने पेस में कर सकते हैं. सो हियर इन दिस केस अ बिगेस्ट एडवांटेज फॉर यू पीपल इज नथिंग बट द रिकॉर्डिंग्स. बिगेस्ट एडवांटेज क्या है इसका? रिकॉर्डिंग्स. जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये सारे सेशन जो है टेक्निकल सेशंस प्लस एड ऑन मॉड्यूल्स, ये लाइव हो गए, प्लस उसका रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको अगर लग रहा है कि ये मेरा अभी कॉलेज है या मुझे अभी इस टाइम पे वर्किंग है वगैरह वगैरह लाइक दैट, तो इमीडिएटली आप दिन में जैसे आपको टाइम मिलता है यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, राइट. अब इस बीच आपको ये भी सवाल आ रहा होगा, मैम ठीक है अभी लाइव लेक्चर तो हो गया, अब रिकॉर्डिंग तो हम सुन लेंगे, पर अगर फिर भी मुझे कोई डाउट आ रहा है तो वो मैं मैम के साथ कैसे डिस्कस करूं, राइट. सो पीपल, वंस यू मेक द पेमेंट, यू गाइस विल बी एडेड टू द पेड मेंबर्स ग्रुप, जहाँ पे आपके ट्रेनर्स, जो सारे ट्रेनर्स रहेंगे रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स के, वो ट्रेनर उस ग्रुप में रहेंगे. तो जैसे ही आपको कुछ क्वेरी वगैरह आता है, you guys can directly put into the group and the trainer will definitely respond to your queries. So this is the solution where you can put your queries, paid members का group. All right. So don't worry कि मेरा कुछ अगर मिस आउट होता है, मैं मैम के साथ बात कैसे करूँ, मुझे कुछ पूछना है मैम को, तो ये एक बढ़िया तरीका है डाउट पूछने का. दूसरा चीज, लैब सेशंस रहने वाले हैं. दिस लैब सेशंस will be scheduled dynamically. डायनामिकली का मीनिंग क्या है यहाँ पे? मतलब जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगा वैसे ही शेड्यूल किया जाए.
लैब सेशन में आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, आप उस मोमेंट पे स्क्रीन शेयर कर सकते हो एंड डायरेक्टली लैब मेंटर्स के साथ बात कर सकते हो, सिंपल। ओके, सो डोंट वरी कि मैं रिकॉर्डिंग से सुनूंगा तो कैसे होगा। तो ये सोल्यूशन है उस चीज का जहाँ पे आप लोग आपके क्वेरीज रिजॉल्व करके ले सकते हो। एडमिन सर रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए। कहीं पर भी रिकॉर्डिंग एक्सेस करने में कुछ इश्यू आता है, समझ में नहीं आ रहा है कैलेंडर वगैरह कैसे एक्सेस करना है, तो एडमिन सर जो है ही विल बी देयर टू हेल्प यू गाइस आउट। ओके, सो दिस इज व्हाट द बेसिक एडमिन पार्ट अबाउट द सेम थिंग्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टिल दिस पॉइंट? ये सबको समझ में आ गया? ओके, परफेक्ट। नाउ जस्ट एक लास्ट पॉइंट ऐड कर देती हूँ मैं यहाँ पे। हम यहाँ पर एक गोल लेकर आते हैं हमेशा, जब भी हम लोग आते हैं तो हम हमारे करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम सबको एक थोड़ा सा टेंशन होता है कि कैसे होगी चीजें, एग्जैक्टली प्लेसमेंट एक्टिविटीज कैसे होगी, क्या नहीं। तो एक उसके बारे में अगले 5 मिनट में मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ द प्लेसमेंट एक्टिविटीज हैपेंस एट फर्स्ट। ओके, यस। सो जस्ट प्रायर टू दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी लेटेस्ट ईयर ऑफ पास आउट कौन सा चल रहा है, तो यहाँ पे 2022 चल रहा है। अभी 2022 का बैच पास आउट हो चुका है, 2023 के कैंडिडेट हो गए, तो ये लेटेस्ट पास आउट ईयर है। अब इसमें और भी थोड़ा लेटेस्ट आता है, +2 एंड -2 कर दीजिए। अभी +2 मतलब यहाँ पे कौन सा होगा, 23 एंड देन नेक्स्ट 24, राइट। -2 मतलब कौन सा होगा, 21, 20, चलो एक और ऐड कर देती हूँ यहाँ पे 19। ठीक है, अब ये सारे पास आउट ईयर्स को क्या कहा जाता है, लेटेस्ट ईयर ऑफ पास आउट कहा जाता है। नाउ इन ऑर्डर टू बिकम अ प्लेसमेंट एलिजिबल, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम डिग्री अपने हाथ में होना जरूरी है। Now you might ask certain questions like, मैम मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, मेरा 23 में कंप्लीट होगा, सो am I eligible? Perfectly fine, perfectly fine. See, understand one thing, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, डिग्री। कोर्स का एक ओवरऑल ड्यूरेशन है मिनिमम 6 मंथ्स का, मिनिमम 6 मंथ्स आपको डेडिकेट करने हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे आपका कोर्स आगे जाएगा वैसे वैसे आपका पैरेलली कॉलेज भी कंप्लीट होगा, एंड वंस यू finishes your degree you will be eligible for the placement process. Now 24 पास आउट, अभी इसके आगे 25, 26, अभी ये तो चलता ही रहेगा, राइट। इसके आगे अभी थोड़ा तुम लोगों को टाइम है, तो ये टाइम यूटिलाइज करो अच्छे से, जहाँ पे आप अपना लर्निंग जो है बढ़ा सकते हो। ये टाइम पे आपने किस चीज पर फोकस करना चाहिए, तो ये टाइम पे आप लोगों ने लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर इन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। आपके हाथ में काफी टाइम है, राइट, तो यूटिलाइज दैट टाइम। नाउ द प्रीवियस कैंडिडेट्स जो अभी तक जिनका पास आउट हो चुका है, आई गिव यू अ रैंडम नंबर ओवर हियर कि प्लेसमेंट का ये रेशियो जो है कैसा वैरी होता है। सो लेट मी टेक अ रैंडम वैल्यू दैट इज 40। अब यूजुअली क्या क्या चीजें रहती है फॉर दिस प्लेसमेंट, थ्रू आउट 60, थ्रू आउट 60, ठीक है। थ्रू आउट 60 मतलब 10th 12th या डिप्लोमा एंड डिग्री, थ्रू आउट 60, ठीक है। उसके बाद गैप के बारे में कुछ रहता है, देन उसके बाद फील्ड अपना, कौन सा फील्ड है, आप आईटी फील्ड से बिलोंग करते हो या नॉन आईटी फील्ड से बिलोंग करते हो, एंड देन फाइनली आपका ईयर ऑफ पास आउट चेक किया जाता है। नाउ understand there are 3-4 different cases. I'll walk you through each and every case. Let's understand the first case. एक कैंडिडेट है, उसको थ्रू आउट 60 है, देयर इज एब्सोल्युटली नो गैप इन हिज और हर एजुकेशन, द कैंडिडेट बिलोंग्स टू आईटी फील्ड। आईटी फील्ड मतलब सीएसआईटी। अब कुछ कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन को इंक्लूड करती है तो कुछ नहीं करती, डिपेंड्स ऑन कंपनीज। तो सीएसआईटी तो आईटी फील्ड है ही।
नाउ इनको छोड़कर जो भी बाकी के फील्ड्स है, जैसे कि सिविल हो गए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, ये सारे फील्ड्स कहाँ पर आते हैं? नॉन आईटी में आते हैं। एंड यहाँ पे ईयर ऑफ पास आउट जो है उस कैंडिडेट का लेटेस्ट ईयर ऑफ पास आउट है। नाउ लेटेस्ट ईयर ऑफ पास आउट यू कैन सी मैं कहाँ तक की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स, दैट इज 40। मैं ये एक रैंडम नंबर ले रही हूँ, डोंट स्टिक टू द नंबर। आप कोई भी नंबर लेकर कर सकते हो, आप चाहिए तो 30 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, 200, 100, एनी नंबर you can take just for the calculation purpose, right? Then let's understand the second case. Now there might be a possibility कि ये जो 4 पैरामीटर्स है इनमें से कुछ एक हद कम होगा। लेट्स अंडरस्टैंड, कैंडिडेट को थ्रू आउट 60 नहीं है, कहीं पर तो गड़बड़ हुआ है, ठीक। ऑलराइट, कैंडिडेट की एजुकेशन में कोई गैप नहीं है, कैंडिडेट आईटी फील्ड को बिलोंग करता है, उसका पास आउट भी लेटेस्ट है। तो इस केस में कैंडिडेट कितने टाइम के लिए, कितने कॉल्स के लिए एलिजिबल होगा? तो सिंपली इस मैक्सिमम नंबर को हाफ कर दो, द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर द 20 कॉल्स। देन लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड केस। एक कोई कैंडिडेट है जहां पर दो चीजें जो है, दो पैरामीटर्स पे वो थोड़ा सा कम हो रहा है। लेट्स से थ्रू आउट 60 है, there is a gap in his education. Also, the candidate belongs to non-IT field, and उसका जो year of pass out है वो year of pass out latest। तो कोई तो दो पैरामीटर पे वो कम हो रहा है, अगेन ये जो है इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। So here the number of calls will be 10. Let's understand one more case, fourth case। ठीक है, कैंडिडेट को थ्रू आउट 60 है, देयर इज अ गैप इन हिज एजुकेशन, कैंडिडेट नॉन आईटी फील्ड से है और इसका ईयर ऑफ पास आउट भी काफी ओल्ड है। ओल्ड मतलब क्या? 19 के पहले। देखो यहाँ पे मैंने लिखा 19 के पहले जो भी रहेगी वो ओल्ड है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर 5 कॉल्स। नाउ कैन यू सी हाउ दिस रेशियो इज चेंजिंग? कैसे कैसे कॉल वैरी हो रही है? 40, 20, 10, 5। अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज जस्ट अ रैंडम नंबर। आप कोई भी नंबर लेकर कर सकते हो। सी, एक चीज समझ लो, जो भी प्रीवियसली हुआ, ओके, जो भी आपका परसेंटेज कहीं ना कहीं कम हुआ बिकॉज ऑफ सम रीजन, कुछ एजुकेशन में गैप आ गया, वॉट एवर थिंग इज, इट वॉज पास्ट। कैन वी चेंज इट नाउ? कैन वी चेंज दैट नाउ? जो चीजें पास्ट में हो गई उसको चेंज कर सकते हैं क्या? No, we can't change. That is not in our hand. Now, what is in our hand then? अपने हाथ में क्या है? We'll work today. We'll focus today. We'll make our present moment better. We'll make our present better so that it will make our future better. You getting? आज तो हमारे हाथ में है ना, ठीक है। कल जो हुआ सो हो गया, कहीं ना कहीं बीच में एजुकेशन में गैप आया। गैप इज समथिंग लाइक, यार उसे बदला नहीं जा सकता, बट एट लीस्ट विद द हेल्प ऑफ आवर नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ आवर स्किल्स, हम उसको ओवरकम तो कर सकते हैं, कवर अप तो कर सकते हैं उस चीज को कि ठीक है, भले है मेरे एजुकेशन में गैप, पर अभी आज मैं इस मोमेंट पे हूँ जहां पर ये टेक्नोलॉजीज मैंने सीखे हुए हैं, ये नॉलेज मैंने गेन किया है। ऑलवेज रिमेंबर दैट एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए? नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्किल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे हम इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली हो जाती है। Now, as a placement coordinator at Firstbit, I just would like to give certain figures in front of your eyes. Like if I show you the latest facts about the placement in a previous year, we have bought around 420 plus companies in our campus. Okay, how many companies? 420 plus companies in our campus, and out of which almost 120 plus companies was no criteria companies, that is open book, जहाँ पे
कुछ भी क्राइटेरिया नहीं था. Yes, companies are hiring those candidates. ठीक है, क्राइटेरिया नहीं है, नहीं बैठता, फाइन. अरे उसके पास स्किल्स है ना. That is what we are going to check. That's simple. So you need to fight. आपको वो आगे आकर एक 100% जो बोलते हैं, 100% से ज्यादा, जिसको 200% बोलते हैं, तो वो आपको डेडिकेट करके देना पड़ेगा. That's it. Okay, so here at this point I'm done. Still, if you have any questions for us, yeah, we are open for the questions. You can definitely ask us. So I hope you all have understood that ये पूरे discussions आपको ये समझ में आया ना कि there will be lot of companies which will be completely no criteria basis, right? No criteria मतलब वो ना आपका पास आउट ईयर देख रहे हैं, ना वो आप आईटी से हो, नॉन आईटी से हो, ये नहीं देख रहे हैं, गैप नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं. लेकिन वो टेस्ट तो लेंगे, इंटरव्यू तो लेंगे, राइट? सो अवर ट्रेनिंग इज दैट पार्ट विच विल ट्रेन यू एंड अकॉर्डिंगली you are going to face the interview. So the interview cracking part is the key to success. I hope you all understood this point, right? Can I have a you for understood from everyone? You for understood, you type कीजिए सब लोग, समझ में आया है तो. Okay, great. So now the platform is open. If you have any queries in your mind, please ask us. क्या हो गया, कुछ क्वेश्चंस नहीं है? सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए, समाधान हो गया. All right, so if there are no more questions remaining, so we can stop here for today. And as you all know, we are meeting again on 20th February, right? Where the actual course is going to start. Okay, so let's stop here. Thank you very much, everyone, for joining. And we had a nice time talking to you. Thank you. Thank you all. Thank you very much. Bye bye. Have a nice day. Take care, everyone.